Good evening, everyone. We can start in next 2 to 3 minutes. Sure. Nandi, please start the webinar. Yeah, sure, ma'am. Ma'am, is my voice audible? Yes, Nandi. Okay. So, good evening, everyone. I am Nandini Ahuja, former Vice Chairperson of Team Sakasa Meerut. It is my pleasure to welcome you all to the seventh day, that is our last day of our learning series, where we focus on the ever relevant topic that is intricacies of export and import. As we all know, intricacies of an export and import go far beyond simply buying and selling across borders. They involve navigating trade regulations, custom procedures, tariffs, currency fluctuations, and international logistics. Our esteemed speaker today will share their insights. So let's introduce our speaker. We are privileged to have with us CA Kalpa Kaplash, a qualified chartered accountant who is a professional with over 14 years of industry experience spanning across indirect taxation, international trade and taxation, finance, and accounting. He has worked extensively in key areas such as GST, customs, foreign trade policy, and has also handled various finance and accounting profiles. He has also worked on prestigious projects such as auto sector PLI schemes with Ministry and Vande Bharat train, Ar- Arun 3 Nepal hydro projects, etc. Currently, he is working in India's major public sector undertaking at corporate office, where he is entrusted with a critical role in managing the organization's taxation issues, including direct and indirect tax. So, beyond his corporate responsibilities, he has written several articles and has been a speaker at numerous seminars. So, please join me in warmly welcome CA Kalpash sir, and I invite him to kindly lead us forward with his thoughts. Over to you, sir. Thank you, Nandi. Good evening, all of you. Today, let me. Today is the seventh day of the series, and today we are going to discuss about the export and import. Give me a moment. I'll just share my PPT.
Is the PPT visible? Not yet, sir. Not yet. From my side, it is showing that the PPT is. It is Have you? visible, I guess. It is It visible is visible. Yes, sir. to everyone. Yes, yes, visible. Okay, let's start. जो today's webinar is based on basically international trade, और आज के इस वेबिनार के माध्यम से we are going to explore the opportunities and possibilities. आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम खोजेंगे वो संभावनाएं और समझेंगे वो कौन से अवसर हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे लिए उपलब्ध हैं। जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो विकास के मार्ग हैं वो कितने बृहत हैं और कितने रोचक हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। जापान में एक छोटा सा गांव है जो बहुत सारे स्प्रिंग्स और ब्यूटीफुल माउंटेन्स और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। उसका नाम है नरूको। वो गांव सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि वो इतने सुंदर हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पे हाँ 1000 साल पुराना एक हॉट स्प्रिंग भी है, लेकिन सिर्फ यही उसकी पहचान नहीं है। वो जाना जाता है वहाँ के लोगों के वजह से जो वहाँ पे कारीगरी है। दे आर वुडन क्राफ्ट्समैन, जिसको जापानीज लैंग्वेज में बोलते हैं मोकुहिनी या मोकुजुकुरी। वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर वुडन क्राफ्ट बनाते हैं, आर्टिकल्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं देश विदेश। इनफैक्ट आप लोगों ने कभी देखा हो, एक बहुत फेमस डॉल है, कुकेशी डॉल बोलते हैं, जो यहाँ भी उपलब्ध होती है। इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स अराउंड 5 to 6 thousand, बहुत छोटी सी डॉल होती है। वो वही नोरुको की गांव की होती है एंड इट इज बीन एक्सपोर्टेड वाइड एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कहा जाता है वहां पे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पहली बार उस डॉल को तराशता है, बनाता है, क्योंकि वहां सभी उसके पेरेंट्स भी बनाते हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी। बट नेक्स्ट डे बाकी आर्टिकल्स के साथ वो कुकेशी डॉल भी पैक कर दी जाती है कंसाइनमेंट में, क्योंकि वहां के लोग उन सब सारी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। सडनली द प्राइड विच द बॉय वाज फीलिंग turns into a bit of confusion and a little bit of sadness. He dares to ask his grandfather. वो पूछता है अपने ग्रैंडफादर से कि हमने इतनी मेहनत से ये चीजें बनाते हैं और अगले दिन उनको सारी दूसरे देशों में भेज देते हैं। What is the use of putting all this labor? जो ग्रैंडफादर जो जवाब देते हैं उन सब, वो जवाब आप सुनिएगा, बिकॉज वही एक नींव रखता है कि एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम इसको दूसरे देशों में नहीं भेजेंगे तो हमारी आर्ट सिर्फ जापान तक सीमित रह जाएगी। What he says after that is very important. वो कहते हैं कि when you are sending your goods abroad, जब आप अपने सामान को, अपनी चीजों को बाहर भेज रहे होते, you are not only sending goods abroad. What you are doing actually is you are creating more jobs at home. You are creating more opportunities at home. You are creating more income at home. आप सिर्फ सामान नहीं भेज रहे हो, आप आय के, समृद्धता के नए साधन पैदा कर रहे हो घर के लिए। सो दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोर्ट। और यूं ही तो नहीं, अर्थशास्त्री एक्सपोर्ट को एक की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन कि एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है एक्सपोर्ट के ऊपर। दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोर्ट फॉर यू, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आई एम ऑफरिंग यू इन मेन्यू टुनाइट इज इंडियन एक्सपोर्ट स्टोरी, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है या बन चुका है, और टैरिफ कैसे बार्गेन चिप की तरह यूज की जाती है आज के समय में। पीएलआई स्कीम क्या है, हाउ टू इंपोर्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, बिल ऑफ एंट्री को समझेंगे और जानेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। हर नंबर एक स्टोरी कहता है, और ये हमसे ज्यादा कौन जान सकता है जो इस फील्ड में है, सीए के फील्ड में है, फाइनेंशियल फील्ड्स में है। लेट मी स्ट्रेट अवे टेक यू टू द हेडलाइन। जो आज की हेडलाइन ये है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन 2024-25। India has recorded $824.9 billion of exports, which is highest ever in the history. You heard it right, gentlemen. $46 billion
more than what we achieved previous year, 6% पिछले साल से ज्यादा। और इस कहानी की खूबसूरत बात क्या है, ये कि ये एक्सपोर्ट्स कहां से आते हैं। ये एक्सपोर्ट्स आते हैं सर्विस से, which has been a crown jewel for India, IT services. IT services has also recorded its highest ever performance, like 375 387.5 बिलियन डॉलर का, विद अ ग्रोथ ऑफ 13.6। और आप बोलोगे कि सर्विसेज में तो हम शुरू से अच्छे रहे हैं, तो खास बात इस कहानी की ये भी है कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट रहा है वो भी इस साल रिकॉर्ड अचीव किया है। नॉन मटेरियल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ने 374.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट दर्ज किया है, विच इज ऑल्सो मोर देन लास्ट ईयर बाई 6%। क्या बताता है ये बताता है कि आज की डेट में आपकी ब्रांड वैल्यू इंडिया की पूरे वर्ल्ड मैप में स्टैंडिंग ऑन अ वेरी टॉल लेवल। You have established yourself as a great brand, resilient exporter, and also as a reliable trading partner. आप कोई भी चीज उठाओ, आपके एक्सपोर्ट, आप देखो कहानी कितनी सुंदर है। You started from spices and now what you are exporting, you name a product, engineering goods, textile, फार्मास्यूटिकल में आप लीडर हो। आप दूसरों के लिए सैटेलाइट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हो। दैट इज काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इंडिया इज हैविंग। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से लेके पावर प्लांट्स वी आर क्रिएटिंग फॉर अदर कंट्रीज। तो दिस इज व्हाट इंडिया स्टोरी हैज बीन। Let's also have a look on some of the headlines which will give you an insight about today's world. Indian ports could benefit from China plus one strategy. ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कह रहा है मूडीज रेटिंग। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी गेन मोमेंटम इन फार्मा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है। इंडिया इमर्जेस एज अ की प्लेयर इन चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है? क्या है ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी? हम सभी जानते हैं कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में। लेकिन अब कंपनियों का ये मानना है, बिकॉज यू हैव सीन दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ओवर मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, न्यूज, ओपिनियंस और बहुत सारे डिस्कशंस में आता है। कंपनी का कहना है कि लेट्स नॉट ओवर डिपेंड ऑन चाइना। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि चाइना की वजह से सप्लाई चेन इंपैक्ट होती है। जब टैरिफ वार हो रहा है, जब टैरिफ लगाया जा रहा है चाइना के प्रोडक्ट्स पे, तो जिसकी वजह से आप चाइना में शिफ्ट किए थे लो कॉस्ट की वजह से, वो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ही वो टैरिफ लगता है, कॉस्टिंग आपके डोमेस्टिक मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट की तो वैसे ही बढ़ जानी है। उसके अलावा कोविड में देखा गया कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन इंपैक्ट हो रही है। बिसाइड्स दैट, सप्लाई चेन के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं आज की डेट में चाइना में, कंसीडरिंग लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी है, वो उतनी सस्ती नहीं है जितनी पहले थी। तो लोग तलाश रहे हैं दूसरा कोई और ऑल्टरनेटिव। एंड टू दिस क्वेश्चन जो जवाब निकल के आ रहा है, इंडिया इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग द आंसर टू दिस क्वेरी। भारत क्यों एक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट है पूरे वर्ल्ड के लिए? अगर चाइना में नहीं लगाना तो भारत ही क्यों? व्हाट इज द एडवांटेज दैट वी आर हैविंग? इसके तीन बड़े फैक्टर हैं। देखिए, मोस्टली थ्योरेटिकल से ज्यादा आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड एरेना में आज की डेट में क्यों डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट अवेलेबल है। दूसरा, इंडिया के पास सबसे बड़ा मिडिल क्लास सेगमेंट अवेलेबल है। तीसरा, आपके पास जो आपके रिलेशंस है वेस्टर्न कंट्रीज या डेमोक्रेसीज से, वो इक्वली अलाइंड है। आपके साथ सभी ट्रेड कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो इन क्वाड, यू आर ऑल्सो इन एससीओ, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। आप सभी में शामिल हो। यू आर नॉट अलाइंड विद अ पर्टिकुलर कंट्री और अ ब्लॉक। Fourth, the biggest reason is PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme. Production Linked Incentive Scheme सबसे important reason है
क्यों इंडिया के अंदर आज की डेट में वी आर एस्टैब्लिशिंग आवरसेल्व्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ये समझेंगे आज के इस डिस्कशन में। कुछ और न्यूज पे ध्यान देते हैं कि यूरोप में रिसेशन है। उसके अलावा हम सभी जानते हैं फॉक्सकॉन ने इन्वेस्टमेंट के लिए $2.2 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया और यूएस में करने जा रहा है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, समझ में आता है, पर इंडिया में मेजर चंक इज गोइंग टू कम, दैट इज लाइक अराउंड 1.5 बिलियन। फॉक्सकॉन एचसीएल के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला है जेवर में विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3700 करोड़। और एप्पल में आप समझने की कोशिश करें कि जहां की खुद की सरकार मना कर रही है कि डोंट गो टू इंडिया, आप यहां मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन एप्पल मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ यहां मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इस साल की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल से भी 53% ज्यादा है। इस समय करंट एस्टिमेट के हिसाब से जितने एप्पल के आईफोन्स इस समय बिक रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, 16 to 17% आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। दैट इज द सिचुएशन। और अगर यकीन करें जिस तरह से चल रहा है, 2027 में 25% शेयर ऑफ एप्पल मार्केट वुड बी सप्लाइड थ्रू इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मेक इन इंडिया फोन्स। हर चौथा फोन मार्केट में इंडिया में बना हुआ होगा। कुछ और खबरें ये कहती हैं कि जेएसडब्ल्यू ईवी इनिशिएटिव ले रहा है 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ। विनफास्ट 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इनफैक्ट आपको बता दें कि वियतनाम की ये सबसे बड़ी ईवी व्हीकल की कंपनी का प्लांट अगस्त में स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $500 मिलियन। और देखिए फर्क क्या पड़ता है, समझने की कोशिश करें। एक बार प्लांट लगता है वो इंडिया को नहीं कैटर करता, व्हाट दे आर थिंकिंग, वो एक्सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट विनफास्ट ने कंफर्म किया है कि उनको ऑर्डर्स आ चुके हैं एशिया से, साउथ एशिया से, अफ्रीका से और मॉरिशस से और बहुत सारी और कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से उनके पास ऑर्डर हैं। एंड दे आर गोइंग टू स्केल अप द प्रोडक्शन फ्रॉम 50,000 ईवी व्हीकल्स टू 1,50,000। उनकी 3 बड़ी फैक्ट्री हैं, जिसमें से एक बड़ी फैक्ट्री आज की डेट में इंडिया में काम कर रही है। सच इज द इम्पैक्ट। और ये डायनामिक्स चेंज कैसे हुए वो समझेंगे। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जिनको जानेंगे। उनकी मैन्युफैक्चरिंग सोनाकॉन स्टार जो करिश्मा कपूर के हस्बैंड की कंपनी है, दिवंगत हस्बैंड की कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हम रेयर अर्थ मैग्नेट इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर के पास आते हैं। टैरिफ इज बीइंग यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप। देखिए, अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सप्लाई चेन में एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो आज की डेट में यू कैन डिक्टेट टर्म्स। आपने देखा होगा न्यूज में कि यूएस सब कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है और उसके बाद उनसे निगोशिएशन कर रहा है। अब ये खबर बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी ने छापी, नोमुरा में। देखो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एवरीथिंग आई हैव कम आउट विद प्रूफ। जॉर्ज बकली, आंद्रेस पेनियाक और डेविड शेफ, यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, क्या कहते हैं? टैरिफ इज बीइंग यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रम्प क्या चाहते हैं, एक कमिटमेंट हुई थी कि आप 2% जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चा करो। इसका मतलब यह है कि आप अपना डिफेंस का बजट बढ़ाओ, डिफेंस के इक्विपमेंट मुझसे खरीदो। और अगर आप समझेंगे, यूरोप के लिए डिफेंस पे खर्चा करना इज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी। इट इज सिमिलर कि आप घर पे गाड़ी खरीद लेते हो और उसको यूज नहीं करते हो। अगर युद्ध हुआ ही नहीं, वी आर नॉट एट वॉर एट एनी प्लेस ऑफ टाइम, ये जो डिफेंस पे खर्चा होगा तो वेस्ट हो जाएगा। इससे ना तो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, क्योंकि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। आप बाहर से कुछ इक्विपमेंट्स खरीद के ला रहे हो और उनको आप अगले 10 सालों में यूज नहीं करोगे और उसके बाद डिस्कार्ड कर दोगे। एंड यूएस क्या चाहता है, वो 2% से ज्यादा पहुंच गया। वो कह रहा है कि आप जीडीपी का 5% एक्सपेंडिचर करो डिफेंस पे, तब शायद हम आपका टैरिफ कम कर देंगे। एंड दे हैव कम आउट विद एन इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स जो ये कहती हैं कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट इज जब आपके एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज्यादा है।
आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपकी इनकम कम हो रही है, एक डेफिसिट है चाइना के साथ। सेकंड नंबर पे जो आप नाम देख रहे हो वो है यूरोपियन यूनियन। यहां से वो ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा हो जाए, आपके प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में महंगे हो जाएं। जब आप पे प्रेशर पड़ेगा तो आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर, मुझसे इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे टू काउंटर दिस, टू काउंटर दिस ट्रेड डेफिसिट। इस तरह से क्या है, टैरिफ इज बार्गेनिंग चिप की तरह यूज हो रहा है और यूएस ही नहीं कर रहा है। लेट मी गिव यू एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सप्लाई चेन कंट्रोल करने से आप क्या कर सकते हो। आज की डेट पे, आज के दिनांक में आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम एट अ वॉर। आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या अदर स्ट्रेटेजिकल गोल टैरिफ से भी कंट्रोल कर सकते हो। लेट मी गिव यू वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ रिसेंट टाइम। रेयर अर्थ मिनरल कैसे जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड की ध्रुव बन के निकले थे, कैसे वो निकले थे, कैसे उन्होंने एक जो टैरिफ वार चल रहा था यूएस और चाइना में, वो पूरा गेम चेंज कर दिया। लेकिन समझते हैं कि क्या होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, आपने सभी ने न्यूज में सुना होगा। और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है कि चाइना को, आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जितना भी टैरिफ लग रहा है रशियन ऑयल खरीदने पे वो इंडिया पे लग रहा है, जबकि चाइना भी हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, बट यूएस चाइना पे टैरिफ लगा ही नहीं पा रहा है। उसका एक मेन रीजन यही है, रेयर अर्थ एलिमेंट। समझने की कोशिश करें कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं। माना जाता है कि आने वाले समय की या इस शताब्दी का ये नया पेट्रोलियम ऑयल है। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। 17 एलिमेंट्स हैं ये जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं। इनको, ये रेयर तो नहीं है, लेकिन इनका कंसंट्रेशन इतना लो होता है कि इनका एक्सट्रैक्शन बड़ा मुश्किल होता है। आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो लेकिन इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। अब और ये यूज हर चीज में होते हैं, स्मार्टफोन से लेके आप लैपटॉप, स्मार्टफोन कुछ नहीं बना पाओगे, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बना पाओगे क्लीन एनर्जी में, और डिफेंस में फाइटर जेट्स, रेडार, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, आप ये नहीं बना पाओगे अगर आपको इनका एक्सेस नहीं है। चाइना का मोनोपोली है। कैसे? 60 से 70% प्रोडक्शन कहां हो रहा है? चाइना में। ऐसा नहीं है और कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और कंट्री भी प्रोड्यूस कर रही है। जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स। चाइना मैक्सिमम कर रहा है, उसके बाद यूएस के पास भी है, म्यांमार के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 20-30 हजार मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप प्रोड्यूस करने के बाद इसको प्रोसेस करने के लिए सारी कंट्री चाइना भेज रही हैं। आप चौंक जाओगे बात समझ के कि 60 से 70% जो ग्लोबल माइनिंग कर रहा है, 100%, लगभग 90% प्रोसेसिंग चाइना में होती है। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट प्रोडक्शन का जितना सेटअप है वो चाइना में अवेलेबल है, लो कॉस्ट में होती है। इनफैक्ट यूएस भी माइनिंग करने के बाद चाइना भेज देता है। इसीलिए यही मोनोपोली का, यही जो सिंगल हैंडेडनेस को यूज करके उन्होंने क्या किया, जब यूएस ने टेरिफ वॉर रेज किया, पहले 100%, फिर 125%, फिर 200% जब पेनल्टी लगाई, चाइना ने बस इतना सा करा कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई बंद कर दी। हुआ क्या? आप ना स्मार्टफोन बना पा रहे थे, आप ना लैपटॉप बना पा रहे थे, आप ना ईवी व्हीकल बना पा रहे थे। एज अ रिजल्ट यूएस केम एट अ बैक फुट, वो ट्रेडिंग टेबल पे आ गए। और अब आप पूछोगे कि यार इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है रेयर अर्थ, हम कहां खड़े हैं इसमें? कमाल के फिगर्स हैं। भारत के पास 1/5 ग्लोबल रिजर्व्स है इस समय। जो हम कह रहे हैं नेक्स्ट तेल है, तो इंडिया के पास रिजर्व्स तो बहुत सारे हैं। 1/5, 6.9 मिलियन मेट्रिक टन्स का रिजर्व्स है हमारे पास, लेकिन हम प्रोडक्शन कर पाते हैं 1% से भी कम का, और जो भी प्रोड्यूस कर देते हैं भेज देते हैं चाइना में प्रोसेस करने के लिए। तो हमारी जो डिपेंडेंस है, क्योंकि इंडिया इस समय रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है जो ईवी व्हीकल और सेमीकंडक्टर्स में काम कर रहा है, लेकिन हमें डिपेंड होना पड़ा चाइना पे। चाइना ने हमारी भी रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई बंद कर दी थी, तो इंडिया हैज कम आउट। दो अभी हमने देखा कि बीजिंग के साथ रिलेशन सुधरे हैं और उन्होंने सप्लाई ये चालू कर रखी है, बट इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग ऑल्टरनेट ऑप्शंस इन दिस। So this is one of the story to understand. उसके बाद
एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसी ट्रेड वॉर की। इस साल क्या हुआ, आप कभी भी इस बार अखबार जाके देखिएगा, ये इसी महीने की खबर है। इस बार यूएस के अंदर जो सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ वो बम्पर हुआ, इतना कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने कहा है कि हमारे पास स्टोरेज करने की भी जगह नहीं है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया है। बम्पर प्रोडक्शन है इस बार अमेरिका में। प्रॉब्लम कहां है, कहानी में ट्विस्ट कहां है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेजर परचेजर, मेजर बायर कौन है? चाइना है। 1/5 जितना सोयाबीन वहां पे प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक यूएस से भी ज्यादा कंज्यूम होता है चाइना द्वारा। और इस बार चाइना ने क्या किया? इस बार चाइना ने एक भी ट्रक नहीं मंगाया। दे हैव नॉट ऑर्डर्ड अ सिंगल कंसाइनमेंट, बल्कि डिस्पाइट ऑफ दिस दे आर परचेजिंग इट फ्रॉम साउथ अमेरिका। अब होता क्या है कि रूरल में सारा का सारा इनका प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा है, रूरल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। आप ये खबर पढ़ेंगे तो टैरिफ टू हेल्प फार्मर्स, ट्रम्प को ये अनाउंस करना पड़ा कि जो मैं टैरिफ पॉलिसी चला रहा हूं, हाई टैरिफ्स ले रहा हूं, उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे मैं आप फार्मर्स का जो यूनियन है उनको मदद करूंगा। बिसाइड्स दैट उन्होंने रिक्वेस्ट की है चाइना से कि आप ये सोयाबीन खरीदें। जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सप्लाई चेन में अगर आप एक डोमिनेंट प्लेयर हो, क्योंकि चाइना ने अगली मीटिंग होने वाली है टैरिफ से रिगार्डिंग 10 नवंबर को, तो इट इज अगेन गोइंग टू बी अ मेजर मेजर बार्गेन चिप, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रही है और सभी को अपने इलेक्टोरल बेस को एड्रेस करना पड़ता है। अब इंडिया के अंदर जो ये मेजर चेंज हो रहा है, इंडिया कहां खड़ा है? इंडिया में भी मैंने बताया आपको बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है यही जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, which is shaping India's industrial growth, which is making India today a global force, a global manufacturing hub in current times. ऐसा क्या है, क्या है ये स्कीम? बेसिकली इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्लान। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सब्सिडी दिया करती थी। भाई आप समझो कि आप एक गवर्नमेंट हो, आपको अपना प्रोडक्शन, आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्कीम। पहले क्या होता था कि हम आपको सब्सिडी देंगे, मतलब आपको जमीन मुफ्त में देंगे, आपको लोन सस्ता देंगे, आपको बाकी सारी सहूलियतें देंगे, आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट करो। लेकिन देखा गया कि अब सारी सुविधाएं लेने के बाद भी आप उस स्टेज पे आ ही नहीं पाते थे कि आप एक्सपोर्ट करो। दिस टाइम गवर्नमेंट हैज चेंज्ड इट। ये पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई 2020 में। इनपुट सब्सिडी से शिफ्ट होने के बाद आप आउटपुट परफॉर्मेंस पे आ गए। आपने कहा कि आप पैसा अपना, आपका सारा सारा इन्वेस्टमेंट अपना, हम आपको इंसेंटिव तब देंगे जब आप प्रोडक्शन करोगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा इंसेंटिव। और इसमें गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर ये है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स को नहीं है ये स्कीम, ये स्कीम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी दी गई है, जिसकी वजह से विनफास्ट, फॉक्सकॉन, एप्पल अपने देश से लड़ाई करने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग हब कहां सेटअप कर रहे हैं? इंडिया में। सो दैट इज द इंपैक्ट। ये आत्मनिर्भर स्कीम को भी सपोर्ट करती है और मेक इन इंडिया भी सपोर्ट करती है। और इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत सी चीज बताते हैं, ये आरएनडी को सपोर्ट करती है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजिक नीड्स को फुलफिल करती है। अभी आपने थोड़े साल महीने पहले देखा था, ऑपरेशन सिंदूर में लॉन्च किया तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमें ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो पीएलआई स्कीम्स के अंदर ड्रोन्स भी आने लगने वाले हैं। $230 मिलियन का इंसेंटिव अनाउंस किया गया अगर आप डॉलर सेटअप ड्रोन्स बनाओगे तो। अब आप मुझे बताओ कि इंडिया में ड्रोन्स खुद बनने लग जाएंगे कि नहीं बनने लग जाएंगे? ड्रोन्स हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ऐसा हुआ है 14 सेक्टर में। जस्ट लुक एट दिस मार्वेलस अचीवमेंट। ये 2024 तक का डेटा है जहां पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट हमने कि 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा दिया इस स्कीम ने। 12.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू जनरेट किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है 9.5 लाख की, और एक्सपोर्ट जनरेट किए हैं 4 लाख की। अगस्त 2024 तक का डाटा है, लास्ट ईयर का
फिगर्स आर ऑल्सो वेरी स्टैगरिंग। 14 सेक्टर्स में अनाउंस है ये स्कीम, गेम चेंजर स्कीम है। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल में आप इस समय इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो वर्ल्ड मार्केट में कि अभी 100% टैरिफ जब यूएस ने अनाउंस किया तो उसमें बहुत सारी, आपने देखा होगा, जेनरिक दवाइयों को छोड़ दिया। जेनरिक दवाइयों को छोड़ दिया क्योंकि वो इंडिया से आती हैं, बिकॉज यू आर फुलफिलिंग दैट नीड। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड सेगमेंट। पहला था ये समझना कि आज की डेट में क्या ग्लोबल सिनेरियो अवेलेबल है। Due to the paucity of time, I'll straight away come to the second important topic. अगर हमें इंपोर्ट करना है तो कैसे करें। इस ग्लोबल मार्केट में दो ही चीज आप कर सकते हो, या तो एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। तो पहले समझते हैं कि हाउ टू इंपोर्ट। तो इस सेकंड सेशन में, सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि इंपोर्ट कैसे किया जाए, क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे हम क्लियर करा सकते हैं अपने गुड्स को कस्टम से। लेकिन उससे पहले एक बात समझें, एंड आई विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू इफ यू कैन आंसर मी इन चैट बॉक्स। एक एक्सपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है और एक इंपोर्टर है। दो ही किरदार होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। मुझे आप बताओ, जब आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपके सामने सबसे बड़ा रिस्क क्या है। कैन एनीबडी आंसर इन अ चैट बॉक्स कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हो, लेट्स अंडरस्टैंड, आज आपने सोचा कि मैं इंटरनेशनल ट्रेड करता हूं, ये तो बता दिया कि इतनी सारी संभावनाएं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट नाउ आई वांट टू एक्सपोर्ट। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या मेरे सामने आके खड़ा होता है फॉर एन एक्सपोर्टर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम आस्किंग हियर इज कि मेरे को एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है 100 ऑफ शर्ट्स मुझे एक्सपोर्ट करनी है क्या, और मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आप 100 शर्ट भेज दो, मैंने बना के भेज दूं, क्या रिस्क है मेरे सामने। सबसे बड़ा रिस्क है पेमेंट का। अगर कोई ऑर्डर प्लेस भी होता है और मैं कल की डेट में उसको एक्सपोर्ट कर देता हूं यूएस में, क्या मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। द बिजनेस करने का फायदा ही क्या है कि अगर मुझे, आई एम नॉट श्योर कि मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो पेमेंट रिलेटेड जो रिस्क हैं वो है क्रेडिट रिस्क। बायर फेल कर देता है आपको पैसा देना, उसने गुड्स तो ले लिए लेकिन अमाउंट आ ही नहीं रहा है। अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। ये फ्रॉड की वजह से हो सकता है अगर वो जान के कर रहा है, और अनइंटेंशनल हो सकता है कि बैंकरप्सी हो गई, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए, वो दे ही नहीं पा रहा है। आपके गुड्स तो खरीद लिए लेकिन पैसा देने की स्थिति में ही नहीं है। दूसरा होता है करेंसी रिस्क। बायर पेमेंट तो कर रहा है लेकिन उसकी करेंसी अगर डिवैल्यू हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन की वजह से आपका नुकसान हो गया है। पॉलिटिकल एंड कंट्री रिस्क, हमने बहुत सारी कंट्री में ऐसे काम किया है जहां पर, जैसे यमन है, वहां पे वॉर हो गया, इंटरनल वॉर की वजह से वहां पे ट्रेवल एडवाइजरी है, पैसा छोड़िए आप वहां पे विजिट भी नहीं कर सकते, हमारा सामान वहां पहुंच चुका है लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा रिस्क पेमेंट से रिलेटेड है। बैंकिंग एंड ट्रांसफर रिस्क, कि पैसा तो देना चाह रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट ही फ्रीज है। या फिर डिस्प्यूट हो गया है। डिस्प्यूट क्या, जो आपने शर्ट भेजी उनको पसंद नहीं आई, उनको उस क्वालिटी की नहीं मिली, या फिर कम मिली या ज्यादा मिली, कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, उसकी वजह से वो पेमेंट देने से मना कर देंगे। तो हम यूएस वाली पार्टी को कैसे फोर्स करेंगे कि आप पेमेंट दे दो। हम तो उसको यहां पर सू भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करना चाहिए कि ये रिस्क कवर हो जाए। What we should do to cover this kind of a risk in international trade? इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो ये रिस्क कवर करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो कि ये रिस्क कवर हो जाए। आई वुड अगेन एक्सपेक्ट मेरिट टू प्लीज आंसर
कि हाउ टू कवर दिस रिस्क। आई एम अनश्योर कि मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा, मैं शर्ट भेज दूंगा तो पैसा नहीं आएगा। ऑब्वियसली आप एक काम कर सकते हो, उससे एडवांस में पेमेंट ले सकते हो। अब मैं एडवांस में पेमेंट ले रहा हूं कि मैं कह रहा हूं मुझे आप पैसा पहले दे दो, उसके बाद मैं शर्ट भेजूंगा। फर्स्ट आई विल रिसीव द मनी एंड देन आई विल डिस्पैच माई गुड्स। सो दैट मेक्स मी सेफ और नॉट? दैट वुड सिक्योर एंड प्रोटेक्ट माई बिजनेस। बट ये तो कहानी का एक पहलू है। कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं जो इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर को क्या चाहिए? एक बार उसने गुड्स भेज दिए, उसको चाहिए पैसा। कहानी का दूसरा किरदार है, उसको क्या चाहिए? वो पहले पेमेंट कर देगा तो ही इज अनश्योर कि मुझे गुड्स मिलेंगे कि नहीं। हमने कितनी बार देखा है कि आपने पेमेंट कर दिया, फौरन कई बार मैसेजेस आते हैं, हम लोग बहुत सारे यंगस्टर सोचते हैं कि हम लोग ये बहुत सारी चीजें मंगा रहे हैं, कैमरा मंगाते हैं, पेमेंट कर देते हैं किसी वेबसाइट पे और गुड्स कभी भी नहीं आते। वन रिस्क इज दिस। सेकेंड रिस्क क्या है? आपने पैसा पहले दे दिया और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, सपोजिटली यू आर इंपोर्टिंग अ कैमरा फ्रॉम चाइना, यू हैव मेड अ पेमेंट, बट आपने जो मंगाया था वो वैसी चीज आई नहीं, तो क्या हुआ? यहाँ पे तो जैसे मिंत्रा में यू डोंट लाइक अ प्रोडक्ट, आप उसको अगले दिन वापस कर देते हो। फॉरेन ट्रेड में तो पॉसिबल ही नहीं है वो वापस लेगा, राइट? सेकेंड प्रॉब्लम ये है। थर्ड क्या है? देखिए, जब आपके गुड्स आते हैं ना, जब आप इंपोर्ट करते हो, कैमरा पहुंच गया कस्टम में, आप जाके ऐसे नहीं छुड़ा सकते कि ये मेरा कैमरा मुझे दे दो। यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बायर, यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर गुड्स के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कुरियर करता है, जिससे आप प्रूव करते हो अपनी ओनरशिप, कस्टम में जमा करते हो और अपने गुड्स छुड़ाते हो। तो यू नीड दोज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। तो इंपोर्टर तो भाई एडवांस पेमेंट करने वाला है नहीं। अब ये गुत्थी सुलझे कैसे? वन नीड्स एंड पेमेंट, द अदर पर्सन नीड्स गुड्स एज वेल एज द डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिक्योर करता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड समझना चाहते हो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेमेंट कैसे लिया जाए, ये समस्या कैसे सॉल्व की जाए। तो ये समस्या सॉल्व करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आप डेफिनेशन में माने तो एक गारंटी देता है एक्सपोर्टर को, एक प्रॉमिस करता है एक्सपोर्टर से कि भाई आपका पैसा मैं दूंगा। अब देखिए, प्रॉमिस तो कोई भी कर सकता है, इंपोर्टर भी कर सकता है कि आप गुड्स भेजो, आई प्रॉमिस कि एक बार आप गुड्स मेरे को भेजोगे ना, आई विल पे यू द अमाउंट। बट आपको गारंटी उससे थोड़ी चाहिए, गारंटी चाहिए सरपंच से। गांव का सरपंच कह दे कि हाँ यार गुड्स आ जाएंगे तो पैसा मैं दिलाऊंगा। वो सरपंच यहां पर कौन है? वो बैंक है। बैंक प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप गुड्स भेज दोगे और एलसी में लिखी हुई कंडीशन को मान पूरी कर दोगे, वो कंडीशन क्या होंगी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे भेज दोगे, गुड्स भी सही होंगे, आपके डैमेज नहीं होंगे, तो पैसा दिलाने की गारंटी बैंक की है। दैट इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट इज फॉर यू। इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे होता है ये लेटर ऑफ क्रेडिट से पेमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से प्रोफेशनल को, बल्कि मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को भी ये क्लियर ही नहीं होता लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक प्रोसीजर क्या है। जैसा कि हमने कहा कि दो किरदार होते हैं कहानी में, लेकिन दो किरदार तो आपस में लड़ पड़े, सेटल ही नहीं हुई उनमें बात की पेमेंट के बेसिस पे कैसे हम एक्सपोर्ट कर दें विदाउट पेमेंट। तो यहां दो किरदार और जुड़ जाते हैं, एक इशूइंग बैंक, एक एडवाइजिंग बैंक। कहानी किस तरह से चलती है? सबसे पहले एक सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब एक्सपोर्टर और बायर के बीच में। तो वो ये तय करते हैं कि हम दोनों पेमेंट करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से। तो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड स्पेसिफाइंग दैट द पेमेंट वुड बी मेड थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद बायर क्या करता है? बायर एक इशूइंग बैंक के पास जाता है और एलसी इशू कराता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को गारंटी चाहिए। तो इंपोर्टर सरपंच के पास गया है, इंपोर्टर हैज अप्रोच्ड द इशूइंग बैंक कि आप एलसी खोल दीजिए। इशूइंग बैंक एक एलसी इशू करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर कंडीशन पूरी कर दी एक्सपोर्टर ने तो मैं पेमेंट करूंगा। और एलसी इशू करता है किसको?
जिस कंट्री का एक्सपोर्टर है उसके बैंक को। अब ये बैंक टू बैंक डीलिंग होती है, क्योंकि इंपोर्टर को एक्सपोर्टर पे भरोसा नहीं है और एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पे भरोसा नहीं है, तो गारंटी क्योंकि बैंक दे रहा है तो बैंक टू बैंक डीलिंग होती है। इशूइंग बैंक बायर के कंट्री में होता है, सेलर बैंक की कंट्री में एडवाइजिंग बैंक होता है। एलसी इशू करता है और भेज देता है कंफर्म कराने के लिए। एडवाइजिंग बैंक अपने एक्सपोर्टर को दिखा के एलसी फाइनल कर देता है। अब एलसी तो इशू हो गई, एलसी का भुगतान कैसे होगा? जैसा कि सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक्सपोर्टर कुछ गुड्स भेजेगा किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो वो दिन भी आ जाता है। एक्सपोर्ट करने का दिन आ गया है, सारे गुड्स तैयार हो गए, सारी शर्ट्स प्रिपेयर हो गई हैं। एक्सपोर्टर गुड्स को शिप कर देता है इंपोर्टर की कंट्री में। पहला स्टेप, एक्सपोर्टर ने वो शर्ट डिस्पैच कर दी, और जो डॉक्यूमेंट्स की बात की थी ना, जो चाहिए इंपोर्टर को सिर्फ गुड्स नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स वो अपने इशू एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। एडवाइजिंग बैंक वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है इशूइंग बैंक को। अब इशूइंग बैंक का काम क्या है? सरपंच वाला काम है। गुड्स आ गए कि नहीं आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए। तो जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो रिव्यू करता है डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स मैच होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई नाम इनवॉइस में लिखा है कि शर्ट्स आ रही हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग या बाकी डॉक्यूमेंट में भी वो नाम होना चाहिए। अगर वो नाम या मिसमैच होगा तो इंपोर्टर वो कस्टम से अपना माल छुड़ा नहीं पाएगा। तो वो जांचता है उन डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अगर पेमेंट हो गया और डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए, इंपोर्टर विल नॉट गेट हिज गुड्स। तो इशूइंग बैंक क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए एकदम। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है इंपोर्टर को, भाई आप भी चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, 5 दिन में बता दो। अगर तो कोई गड़बड़ नहीं है तो वो क्या करता है? सर्टिफाई कर देता है कि एवरीथिंग इज ओके, और पेमेंट दे देता है। 5वां नंबर का स्टेप देखो नीचे, इशूइंग बैंक ने पेमेंट कर दिया एडवाइजिंग बैंक को, और एडवाइजिंग बैंक ने पेमेंट कर दिया किसको? एक्सपोर्टर को। तो पेमेंट एक्सपोर्टर को मिल गया है। एक सिरा तो टाई हो गया। दूसरा पहलू क्या है? इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स मिल गए। जैसे ही आपने कंफर्म किया सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, एक तरफ तो पैसा दे दिया इशूइंग बैंक ने, दूसरी तरफ वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए इंपोर्टर को, और इंपोर्टर ने जाकर कस्टम्स में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे और अपने गुड्स छुड़ा लिए। सो दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेटर ऑफ क्रेडिट मैकेनिज्म। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये सबसे सिक्योर मैकेनिज्म है। तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड में ऑपरेट करना चाहते हो, प्लीज इंश्योर दैट यू आर मेकिंग पेमेंट और गेटिंग पेमेंट through LC. It will also secure both the interest of buyer as well as seller. और इसके साथ आपको यह भी सुनिश्चित होगा कि पैसा भी सही मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी सही मिल रहे हैं। एक इससे रिलेटेड एक स्टोरी आपके सामने रखता हूं। घनश्याम दास एक बासमती चावल के व्यापारी होते हैं कैलकाटा में। I hope this LC payment mechanism is clear to you. If you have any questions regarding this, please let me know. Why I am not able to view the chat? Yes, does bank charges any fees for it? Obviously, बैंक चार्ज करता है एलसी पेमेंट के लिए, आपसे फीस चार्ज करता है, सर्विस देने के लिए ऑब्वियसली इट चार्जेस फीस। लेकिन क्या है, आप इससे बच इसलिए नहीं सकते क्योंकि एक्सपोर्टर को एक्सेप्ट ही नहीं होगा पेमेंट कंडीशन विदाउट एन एलसी आज की डेट में। इंपोर्टर को भी नहीं एक्सेप्ट होगा एलसी पेमेंट के विदाउट एनी पेमेंट। सो यू हैव टू ऑप्ट इट, एंड इट इज ऑब्वियसली ऑन अ चार्जेबल बेसिस, नॉमिनल चार्जेस बेसिस। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बैंक चेक करता है, फिर एलसी इशू करता है। एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एलसी पेमेंट? I'll come to a very important case study regarding this. This will also help you to understand. घनश्याम दास एक ऑपरेटर होते हैं
कैलकाटा बेस्ड, और उनको एक ऑर्डर आता है बांग्लादेश से कि $3.5 लाख का वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन पेमेंट होता है एलसी के थ्रू। तो बांग्लादेश में जो ऑपरेटर है, जो उनका परचेजर है, बायर है, वो क्या करता है, इशूइंग बैंक के साथ एक एलसी खुलवा लेता है। अब कहानी क्या होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट उसने कर दिया है, अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए अमाउंट। तो एक्सपोर्ट में इंडिया में जो एडवाइजिंग बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया था उस बैंक का जो नाम है। बैंक ऑफ इंडिया एक डिमांड रेज करता है इशूइंग बैंक पे। जो इशूइंग बैंक था वो नेशनल बैंक है, बांग्लादेश का बहुत फेमस बैंक। उस पर एक डिमांड रेज करता है कि अब तो मेरे डॉक्यूमेंट्स, अब तो गुड्स भी मिल गए। अच्छा, एलसी में एक कंडीशन थी कि डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जाएंगे, तो उसने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए। बोला अब तो आपको गुड्स भी मिल चुके हैं, बांग्लादेश पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं, अब आप मुझे पैसा वापस कर दो। प्लीज अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है यहां पर। बांग्लादेश पोर्ट पे गुड्स भी खड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पहुंच चुके हैं, अब एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए, लेकिन इशूइंग बैंक मना कर देता है। पहले तो टालम टोल करता है कि अभी क्या है, बायर इस समय सिटी में नहीं है, जब आ जाएगा तब पेमेंट कर देंगे। इस तरह से वो 6 महीने निकाल देता है। इंपोर्टर से एक चिट्ठी भी आती है उनके पास कि डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिपेंट है, डॉक्यूमेंट्स में खामी है, गुड्स भी डैमेज है, जो जैसे चावल मंगाए थे वो चावल नहीं है, हमने तो 10 नंबर वाले चावल मंगाए थे, वो वाले चावल तो नहीं है। अब इशूइंग बैंक बोलता है कि क्योंकि एलसी की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। और ये कहानी हो जाती है साल भर की। अब इसके बाद एक्सपोर्टर के गुड्स तो वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट होता है स्टोरी में। लॉजिकल सी बात है, एलसी से पेमेंट वो करेगा जब कंडीशन पूरी हो जाएंगी, लेकिन बीच में क्या होता है, 6 महीने के दौरान इशूइंग बैंक फोटोकॉपी इशू कर देता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, वो फोटोकॉपी दे देता है डॉक्यूमेंट्स की बायर को, और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफाई करके दे देता है, स्टैंप करके दे देता है। उस बेसिस पे फ्रॉड करके, फॉर्ज करके बायर ने गुड्स छुड़ा लिए। मतलब जितना भी $3.5 लाख का जो चावल पहुंचा था, बासमती राइस पहुंचा था, वो बायर ने छुड़ा लिया। सिचुएशन अभी ये चेंज हो जाती है। एक्सपोर्टर कहता है मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे और गुड्स भी आपने छुड़ा लिए हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट में केस फाइल होता है। कैलकाटा हाई कोर्ट इशूइंग बैंक पे डिमांड रेज कर देती है, $3.5 लाख की भरपाई आप करोगे। कि केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। और यही सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंसीडर योरसेल्फ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जज के सामने दो दलील हैं। एक दलील एक्सपोर्टर की है, घनश्याम दास की है। व्हाट इज द जेंटलमैन सेइंग? घनश्याम दास कह रहे हैं कि मुझे अपने बासमती राइस भेजे हुए तो 1.5 साल हो चुका है, अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ खड़ा है नेशनल बैंक, वो कह रहा है कि मैं क्यों डिमांड दूं, मेरी क्या गलती, एलसी की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। तो एक्सपोर्टर कहता है कि आपने जो फोटोकॉपी इशू करी, जेरोक्स कॉपी इशू करी, उसके बेसिस पे तो माल छुड़ा लिया। बैंक कहता है कि माल तो छुड़ा लिया, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। वो तो इन्होंने क्लियरिंग एजेंट के साथ फोर्ज करके मेरे डॉक्यूमेंट्स के अपोजिट साइड में इंडोर्समेंट करा के निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब प्लीज टेल मी, एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? माई सिंपल क्वेश्चन इज दिस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू आंसर इट। इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन। एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जज साहब के सामने यही सवाल है। यस, धीरज जी कह रहे हैं एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना चाहिए, बट आप समझें कि एलसी की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। एलसी क्या कहता है? लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन। प्रॉमिस तो किया है एक्सपोर्टर को पैसा देने के लिए, बट वंस द ऑल द कंडीशंस आर मेट, और कंडीशन ये है कि आपके गुड्स डैमेज्ड हैं, आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हैं। अब मुझे बताएं, क्या एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? धीरज जी अभी भी कह रहे हैं मिलना चाहिए, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट दिला के ही मानेंगे। आपको बता दें
सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिया, जो निर्णय दिया, वो वही दिया जो धीरज भित्तर जी ने दिया है आज। आपकी बात मान ली सुप्रीम कोर्ट ने सर। उन्होंने कहा कि माना आपने फ्रॉड नहीं किया है, माना आपने फॉर्जरी नहीं करी वो गुड्स रिलीज करने के लिए, लेकिन आपसे चूक तो हुई है, आपसे गलती तो हुई है, क्योंकि आपने क्या किया है, वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और आपको पता होना चाहिए था ये डॉक्यूमेंट्स मिसयूज किए जा सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स किया मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि एलसी मैकेनिज्म का पेमेंट तो बैंक की गारंटी पे डिपेंड करता है। अगर आप ही ये गलती करेंगे तो एक्सपोर्टर को पेमेंट कैसे मिलेगा? हु वुड रिलाई ऑन दिस मैकेनिज्म? इंटरनेशनल ट्रेड का जो पहला रूल है एलसी का, वो उस पिलर पे खड़ा हुआ है कि बैंक इज गोइंग टू इंश्योर द पेमेंट। क्योंकि आप वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में, वो प्रॉमिस फुलफिल करने में नाकाम रहे, तो $3.5 लाख का जो पेमेंट करना है वो आपने करना पड़ेगा। नेशनल बैंक हैड टू पे इट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। यही केस था जो आप लोगों ने खुद डिसाइड किया यहां पर, पेमेंट प्लस सम फाइन एंड ऑल्सो पेनल्टी। बिल्कुल सर, पेमेंट डिले करने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फॉर्जरी उनकी नहीं थी, देयर वाज नो मैलिफाइड इंटेंशन भी प्रूव नहीं हो पाई बैंक के अगेंस्ट। और बाकी ये ढाका लिटिगेशन में भी केस चला, जो बैंक ने बायर पे डाला, वहां पे उससे हैवी पेनल्टी वसूली गई। सो यू हैव, आपने खुद डिसाइड किया है, आज का जजमेंट आपके सामने है, आप जाके चेक कर सकते हैं, घनश्याम दास वर्सेस नेशनल बैंक, ये 2020 का शायद सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। समय सीमा खत्म हो रही है, एक आखिरी टॉपिक के पास आपको लेके चलूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, बिल ऑफ एंट्री। क्योंकि आज के सेशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म समझा है। लेटर ऑफ क्रेडिट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेगमेंट, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री, अगर आपके गुड्स कस्टम के पास आ जाते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे गुड्स हैं प्लीज मेरे को दे दो। ऐसा नहीं है, एयरपोर्ट में जब हमारा सामान आता है, बेल्टर के पास खड़े हो जाते हैं, बोला ये मेरा ब्रीफ केस है, दे दो मुझे। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। जब आप वो डिक्लेरेशन फाइल करते हो, तब वो गुड्स आपको हैंड ओवर किए जाते हैं। वो डिक्लेरेशन क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री होती है। बिल ऑफ एंट्री एक एडमिशन फॉर्म की तरह होता है, जो आप फाइल करते हो या आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे फाइल करेगा, बट आपके नाम से फाइल होगा। इसमें आप बताते हो कि मैं कौन से गुड्स लेके आ रहा हूं, उनकी वैल्यू क्या है, किस कंट्री से आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है और कितना टैक्स है। जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हो, यू पे द कस्टम ड्यूटी ऑन दैट एंड देन द गुड्स आर रिलीज टू यू। बिल ऑफ एंट्री का जो मेन पर्पस है, कस्टम क्लियरेंस है आपके लिए। इसीलिए मैं पूछता हूँ, मेरे पिछले कुछ समय पहले एक कजन का फोन आया कि मैं कैमरा इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप डॉलर में पेमेंट कर देना। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, क्योंकि लीगल रिकॉर्ड में जो बिल ऑफ एंट्री जिसके नाम से फाइल होती है वही इंपोर्टर होता है, वही डॉलर में पेमेंट कर सकता है। अगर बिल ऑफ एंट्री आपका कोई एजेंट फाइल कर रहा है अपने नाम से और उसके बाद आपको बेच रहा है, तो ये डोमेस्टिक सेल है, आपको बैंक फॉरेन पेमेंट करने ही नहीं देगा, आप फंस जाओगे बाद में। इसलिए बेटर टू अंडरस्टैंड कि बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल कर रहा है। इससे ड्यूटी असेस होती है, इससे पता चलता है कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या है। क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर करेक्ट है, अगर आपने असेसमेंट उसमें सही गुड्स लिखे हैं, बिल ऑफ एंट्री बहुत ध्यान से भरनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्शन गलत लिखा है और बाद में वो कुछ और निकलता है, तो बहुत ज्यादा ड्यूटी, आपके गुड्स भी कन्फिस्केट कर लिए जाते हैं। तो कंसिडरिंग we have reached the time limit scheduled for today's discussion, so I'll rest my case here. I'll sign off with this कि हम दोबारा मिलेंगे समझने के लिए बाकी सारे इंपॉर्टेंट concepts of import and export. So that's it from me.
Kalpak sir, it has been an amazing session, amazing PPT, amazing references and very engaging. मतलब कि जब से हमने स्टार्ट करा 1 मिनट के लिए भी मतलब ऐसा मन नहीं करा कि इसको ना सुने. सो इट इज दैट मच एंगेजिंग. सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतना मतलब अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला and to Thank you, enlighten ma'am. our Thank you so students. much. And we are delighted to share that many CA members have also joined us from Meerut as well as from other cities to listen to your session. It's a So pleasure, ma'am. It's a pleasure. It was it was a very good initiative from Sikasa branch. That's why I had to be part of this. So I'm grateful for providing me this opportunity and platform to share my endeavors and certain issues regarding this export and import trade. thank you so much, sir. And I would hand over to Nandini for formal vote of thanks. And yes, okay. I believe Nandini, maybe due to some technical issues, she has dropped off. So, nevertheless, sir, we are thankful to you, and we are hoping that we'll be organizing more and more sessions on this import and export and international trade. And we'll definitely love to have you as a speaker again and again in the series. So, thank you, sir, and thank you everyone for joining in. We'll meet again tomorrow, same time. And CA Anand Jain from Indore will be joining us on the topic RERA. So hoping you all would join tomorrow as well. Thank you, everyone.